वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 चैप्टर 3 एंड इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 रिगार्डिंग एक्सरसाइज 3.3. लेट्स कंटिन्यू. So question number 2 onward I would like to solve here, and in this chapter we are going to solve questions related to substitution method. और सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो इक्वेशंस हमारे पास दिए रहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दो इक्वेशन दिए रहेंगे फ्रॉम एनी वन इक्वेशन। लेट अस से इक्वेशन नंबर 1 से हम x या y की किसी भी वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ y, और फिर उस वैल्यू को हम किसी अनदर इक्वेशन यानी इक्वेशन 2 में, जैसे इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू को लिए तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 से अगर किसी x या y की वैल्यू को लेते इक्वेशन 1 में पुट कर देते। एंड इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए हम x एंड y यानी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज सॉल्व 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24. 2x plus 3y equals to 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. इसको सॉल्व करना है, ठीक। एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हाट, m की वैल्यू हमको फाइंड करना है फॉर y इज इक्वल्स टू mx प्लस हमारे पास दिया हुआ है 3. इस तरह से सबसे पहले से इट इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. I am using here substitution method, my dear friend. Substitution method में हम क्या करते हैं, from equation 1 से, from equation 1 क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू in terms of y, x की वैल्यू in terms of y. कैसे देखिए, 2x plus 3y equals to 11. Transpose this 3y into right hand side, then it becomes 2x equals to 11 minus 3y. Here it is plus और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. Therefore can I say x equals to 11 minus 3y upon 2. Say it is 3. ठीक है. Put the value of, so putting the value of x in इक्वेशन 2 वी गेट, x की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x की जगह पर 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. 2 गॉट कैंसल, सो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. Transpose this 11 into right hand side, then it becomes minus. So minus 3y minus 4y minus 7y equals to minus 24. This becomes minus 11 or minus 7y equals to, this becomes minus 35. Minus got cancelled. 7 5s are, therefore y is equals to 5. Now we have got the value of y which is equals to 5. So put the value of y this in equation 3. So putting the value of y in equation 3 we get x equals to 11 minus 3 times y is equals to 5 upon 2. So 11 minus 3 5s are 15 upon 2 which becomes minus 4 upon 2. 2 2s are is equals to minus 2. Hence x is equals to minus 2, y is equals to 5. Now first part is over. In first part it is saying that find or solve the given pair of linear equation. It means what, first we have to find the value of x and y for the given pair of linear equation. So we have already solved. In second part question is saying what will be the value of m for y is equals to mx plus c. My dear friend, अगर हमको इस तरीके से m की वैल्यू फाइंड करना है फ्रॉम दिस, तो हम कह सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, से इट इज इक्वेशन 4. इन इक्वेशन 4 we get y, what is the value of y, 5. So 5 equals to m times x is nothing but minus 2.
-2 plus 3. So m5 equals to -2m. -2 multiplied by m becomes -2m plus 3. So transpose this 5 into right hand side, -2m into left hand side, then it becomes minus into plus हो जाएगा और ये plus becomes minus हो जाएगा. So 2m equals to 3 and this becomes -5 हो गया. तो 3 minus 5 -2 और 2m, therefore 2 get cancelled by 1 times, so m is equals to -1. Hence m becomes -1. This is the solution. This is one of the solution where x is equals to -2 and y is equals to 5. And here is another part, solution of the another part, which is equals to -1. So my dear friend, in this way I have solved question number 2. Question number 2. Now question number 3 हम यहाँ पर अब देखने के लिए जा रहे हैं. Is there any doubt? अगर किसी भी स्टेज में डाउट हो तो प्लीज़ कॉल मी. आई हैव प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर. Or if you have any doubt, then you can also comment in the comment box. I would reply as soon as possible. Now question 3 says, from the pair of linear equation for the following problems, so and find their solution. Find from the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. My dear friend, I am requesting you that it is provided, it is given strictly by which method you have to solve question, either by substitution method or by elimination method, which we will read later on, or cross multiplication method. Since cross multiplication method is omitted from your syllabus, so उस मेथड को तो पूछेगा नहीं अब, क्योंकि उसको सरकार ने हटा दिया है उस सिलेबस से. ठीक है, बट हियर सब्सटीट्यूशन मेथड एंड elimination method, there are two ways to find the solution of a pair of linear equation in two variable. So now question says, bit first. Question says the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find numbers or find them. My dear friend, अगर यहाँ पर हमें फाइंड करना रहेगा नंबर्स को, सो यहाँ पर कितने नंबर्स को देखेंगे? 2 नंबर्स को देखेंगे, बिकॉज 2 वेरिएबल पर हम यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं. तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक क्राइटेरिया बता देता हूँ. क्राइटेरिया क्या है कि 2 वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना है माय डियर फ्रेंड. तो 2 अननोन क्वांटिटी के लिए आपके पास 2 इक्वेशन होना जरूरी है. अब आप सिचुएशन से वह दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? जनरेट करेंगे. देन बाय सॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके एक्स और वाई या अननोन क्वांटिटी के वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे. ओके, सो मान लेते हैं let the first number equals to x. नंबर को मैं NO से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप इसको नो मत समझ लीजिएगा. ठीक है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम अर्जिंग यू दैट यू डोंट अंडरस्टैंड NO मीन्स नो. नहीं, ये नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू y. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर जो है वह दूसरे का क्या है? 3 टाइम्स है. ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. लेट सो x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स y. यह एक इक्वेशन हो गया. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x, इसको ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इट बिकम्स -3y. अच्छा ठीक है, ऐसे करके नहीं तो आप ये करें, इसी को हम इक्वेशन 1 अज्यूम कर लें. ठीक है, एज्यूम कर लें. नाउ अगेन क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26. डिफरेंस जो है वह कितना है? 26 है. इसका मतलब है कि x माइनस वाई किसके बराबर है? 26 के. लेट अस अज्यूम ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं. तो हम क्या करेंगे कि एनी वन, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y है, 3y जो है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाय दिस x से. सो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट x की जगह पर यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 3y
माइनस वाई इक्वस टू 26, ये हो जाएगा 2y इक्वस टू 26, सो y 2 से 13 टाइम्स, देयरफॉर y इज इक्वस टू 13. Once we have got the value of y is equals to 13, therefore can I say, therefore from 1 x is equals to 3 times y, that is 13. तो 13 3 जा 39, so x equals to 39. Hence can I say, hence one number is x is nothing but 39. वन नंबर क्या होगा, वन नंबर इज 39 एंड अदर नंबर इज 13. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है. सेकेंड बिट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है. सेकेंड बिट सेज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. ठीक है. फाइंड देम. देखिए सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स होंगे यहाँ पर. एक होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल और दूसरे से सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है. तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोज एंगल्स हुज सम, टू एंगल्स की बात करेंगे, हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, बोथ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. कंप्लीमेंट्री की बात करते हैं तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर सप्लीमेंट्री की बात करते हैं. सो दो नंबर्स, दो एंगल्स, अगर दोनों का योगफल यानी एडिशन करें और 180 डिग्री के बराबर होगा, दो एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. लेट यहां पर लार्जर एंगल को हम क्या माने, x मान लेते हैं. लेट द लार्जर एंगल इक्वल्स टू x एंड द स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू y. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. देयरफॉर कैन आई से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लेट अस से 1. अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री जो होगा एक्सीड द स्मॉलर बाय 18. इसका मतलब लार्जर हमने x को एज्यूम किया है तो x जो होगा वह y से 18 अधिक है. तो y में अगर 18 को ऐड कर दें तो वह x के बराबर हो जाएगा. और वी कैन से दिस इज व्हाट, इक्वेशन नंबर 2. ऐसा कह सकते हैं. ठीक है. नाउ क्या करना है, यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे पास हो गए. या तो इसको ऐसे करके कर लेते हैं और x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 से इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. इक्वेशन नंबर 2. तो वी हैव टू इक्वेशन, टू अननोन क्वांटिटी एंड वी हैव टू इक्वेशंस. सो कैन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. नाउ वी हैव टू सॉल्व और इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो हम क्या करें यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कैन आई से x इक्वल्स टू, इस y को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड. सो 180 माइनस वाई डिग्री यहाँ पर नहीं लिखें तो चलेगा काम. ठीक है. 3 हो गया. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, 2 में, 1 में नहीं. 1 में क्यों नहीं, क्योंकि अगर 1 में पुट कर देते हैं तो पूरा ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180. मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वाई गॉट कैंसिल हो जाएगा, 180 कैंसिल हो जाएगा. सो एवरीथिंग वुड बी कैंसिल. वह इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा क्योंकि यहीं से तो हम लाए हैं. ठीक है. ओके. नाउ सो x के प्लेस पर रखेंगे. सो 180 माइनस वाई x के प्लेस पर रख दिए एंड ऑलरेडी एक y माइनस के साथ है इक्वल्स टू 18 और 180 minus 2y equals to 18. Transpose this 180 into right hand side. It becomes minus 2y equals to 180 minus 18 minus 180. ये कितना हो जाएगा, माइनस 162 हो जाएगा. ठीक है.
162 हो जाएगा और माइनस 2y, माइनस गॉट कैंसर, 281 टाइम्स कटेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 81. सो अगर हम y इज इक्वल टू 81 वी हैव ऑब्टेन, सो कहाँ से, फ्रॉम 3 से x की वैल्यू को हम ऑब्टेन कर लेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट x इक्वल टू 180 माइनस 81, 9, ये हो जाएगा 9. ठीक है, तो कितना हो गया 99. देखिए यहाँ पर कह सकते हैं हेंस वन एंगल और लार्जर एंगल, हेंस लार्जर एंगल इक्वल्स टू 99 डिग्री, स्मॉलर एंगल equals to 81 degree. This is your answer. ठीक है, you can check it. Okay, now question is saying both are supplementary to each other. My dear friend, supplementary means if we add both angles then we must have 180 degree. आप देख सकते हैं 99 plus 81 definitely damn sure 180 degree, 100% correct. Okay, third question says the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750, means 1,750. Find the cost of each bat and each balls. Okay, now हम लोग एज्यूम कर लें कि एक बैट की कीमत x रुपीज़ एंड 1 बॉल की कीमत y रुपीज़ है. Let the cost of 1 bat equals to rupees x, cost of 1 ball equals to rupees y. Clear? According to question, according to first condition, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ. According to first condition, 7 बैट एंड 6 बॉल एंड टोटल पेमेंट कितना का हुआ है 3,800 रुपीज़ का. सो एक बैट की कीमत x रुपीज़ तो 7 बैट 7x, एक बॉल की कीमत y रुपीज़ तो 6 बॉल 6y. टोटल हमारे अनुसार से कितना हो गया 7x प्लस 6y. बट क्वेश्चन क्या कह रहा है 3,800. इट मीन्स बोथ आर इक्वल. लेट अस से इट इज इक्वेशन 1. According to second condition, 3 बैट एंड 5 बॉल. ठीक है, एक बैट की कीमत 3x रुपीज़, 3 बैट 3x रुपीज़, एक बॉल y रुपीज़, 5 बॉल 5y, टोटल 3x प्लस 5y. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कह रहा है 1750, मीन्स 1750. लेट अस से इट इज इक्वेशन 2. Now we have two equation, 2 variables. By substitution method we will have to find the value of x and y so as to get the cost for 1 bat and 1 ball. ठीक है, okay. Now from 1, अच्छा मैं यहीं पर कह सकता हूँ कि 7x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y, therefore x equals to 3,800 minus 6y upon 7. कर सकते हैं श्योर. लेट अस से 3 नंबर पार्ट. ठीक है, अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे. सो पुटिंग x, putting the value of x from 3 in 2 we get 3 टाइम्स x की वैल्यू कितना है 3,800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y 1750, और 7 से इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं 300. ठीक है, 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9, 11 माइनस 18y 6 3 जा 18. ठीक है, और प्लस 7 5 जा
35y अपॉन 7 इक्वल्स टू 1750 और 11400 ये कितना आ जाएगा प्लस 7 and 2 1 divided equals to 7 multiplied by 1750 which is nothing but 0 7 5 जा 35 3 17 7 जा 1193 122 now 17y equals to 12250 transpose into right hand side it becomes minus so 00 50 2 4 8 इतना आ गया 17y therefore y becomes ये 17 5 जा 50 आ गया y becomes 50 आ गया ठीक है। अगर हमारे पास y की वैल्यू निकल गया सो क्या हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ओके सो फ्रॉम 3x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 times y that is 50 upon 7 so 3800 minus 650 300 divided by 7 so 300 minus कर देंगे 3500 divided by 7 5 जा 00 x therefore can I say x is equals to 500 what is x x है हमारा cost of 1 bat so can I say therefore cost of 1 bat equals to rupees 500 and cost of 1 ball equals to rupees 50 this is your answer okay now third one is over fourth one says taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge of the distance covered जैसे जैसे आप डिस्टेंस कवर करेंगे उस तरीके से आपको उसी तरीके से उसी रेट से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा ओके फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड is rupees 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees what are the fixed charge and the charge per kilometer how much does the person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड देखिए चार्ज यहाँ पर जो आपको पे करना पड़ेगा एक तो फिक्स्ड है फिक्स्ड और दूसरा है रेट दैट इज डिस्टेंस कवर्ड यानी पर किलोमीटर रुपीस पर किलोमीटर ठीक है या जितना कवर करेंगे 1 किलोमीटर में इतना रुपया 2 किलोमीटर में उस तरह से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा ठीक है रेट से पे करना पड़ेगा सो ये इसमें फिक्स्ड यानी कांस्टेंट अमाउंट है और ये रेट के अनुसार से इसका मतलब जितना डिस्टेंस कवर करें उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा लगेगा। तो सवाल ये उठता है जैसे कि मान लेते हैं जैसे मैं मान लेता हूं कि आप टैक्सी में बैठे हैं या ऑटो में बैठे तो इस सिटी की बात मैं कर रहा हूं जिस सिटी में मैं रह रहा हूं जैसे ही आप ऑटो में बैठेंगे 25 रुपीज़ उसका पेमेंट आ गया उसके बाद पर किलोमीटर जब आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो दिन के हिसाब से मान लेते हैं कि नॉर्मल डेज़ वर्किंग डेज़ में जैसे कि रात की तो चार्जेस अलग होते हैं दिन का चार्ज अगर बात कर लेते हैं 8 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक तो लमसम अमाउंट 5 रुपीज़ पर किलोमीटर इस तरह से है एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता लेकिन 5 रुपीज़ पर किलोमीटर करके है। तो आप ये देखिए मान लेते हैं कि फिक्स्ड प्राइस आपका कितना हो गया 25 रुपीज़ जैसे ही आप टैक्सी में बैठे ऑटो में बैठे तो उसका बन गया कितना 25 रुपया उसके बाद 1 किलोमीटर डिस्टेंस जैसे कि 5 रुपीज़ पर किलोमीटर का रेट है पर किलोमीटर तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना आप ट्रेवल करेंगे तो कितना लगेगा 5 रुपया लगेगा तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 25 रुपया और यहाँ से 5 रुपया मिल करके 30 रुपीज़। अच्छा उसके बाद आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे तो 10 रुपीज़ लगेगा तो यहाँ से 25 और यहाँ से कितना हो गया 10 तो कितना हो गया 35। उसके बाद अगर जो है ना अगर 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो
3 इंटू 5 हो गया, यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 यानी 15 हो गया, तो 25 प्लस 15 ये हमारे पास 40 हो गया। तो इस तरीके से अगर 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो 40 रुपीज़, 2 किलोमीटर डिस्टेंस 35 रुपीज़, 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो 30 रुपीज़। तो सवाल ये है कि फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड रुपीज़ जो अमाउंट है और रेट दोनों मिल करके आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड आपने समझ लिया, ठीक है माय डियर फ्रेंड। हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लाइक करना ना भूलें, लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है। शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर होगा तो सभी कोई हमारे नॉलेज का यूटिलाइज कर सकेंगे। थर्ड, सब्सक्राइब, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन फॉर माय वीडियो।